ओके, सो मूविंग टू द फर्दर पार्ट, एक बार आगे बढ़ने से पहले अपन ने डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसमें वी हैव नोन, नाउ वी आर नोन कि मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. आई हैव 3 मैट्रिसेस विथ मी नाउ. वो प्रैक्टिस के बाद में देन वी विल मूव ऑन विथ द further part of the matrices that are the types of matrices that we need to study. Okay, so before that first अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑर्डर एंड कौन सा एलिमेंट कौन सा होता है उसको, एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए विल बी हैबिचुअल टू दोज थिंग्स. देन वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद द रिप्रेजेंटेशन. बोलो या फिर बोलो कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स और हाउ डू यू रिकॉग्नाइज विच एलिमेंट इज विच. So now I am going to write over here. I'll be using 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 different pens with me. 9 pens. Okay. पहला. So now this one. अभी यहाँ पे कितने रो है? 1, 2, 3 rows are there. Similarly, there are 1, 2, and 3 columns. So the order of the matrix is nothing but the number of rows and number of columns. So my order of matrix is 3 by 3. Let me just take different color, and it is 3 by 3 matrices. Is it? थोड़ा बोल्ड में लिखता हूँ तो ओके. इतना पिंक अप भी आता है क्या ये? वाह, ओह नाइस. 3 by 3 का मैट्रिसेस है ये. एग्जैक्टली. नाउ विच इज विच, तो देखो दिस ओवर हियर 1, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा A11 को. एग्जैक्टली. इसका मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है. एग्जैक्टली. सो नाउ द वन very first element 1 is going to represent A11. So I will write over here 1. Then A22. So A12. A12. A1 मतलब क्या हो गया? First row, second column, and that is 2 over here. Next is my A13, which is my first row का तीसरा एलिमेंट बोलो या तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट बोलो. तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट. सो नेक्स्ट इज व्हाट माय 4. अब ये 4 लेकिन कहां पे है? नाउ विल कम टू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो, दैट इज मेरा सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है ये, और ये पहले कॉलम में है. सो इट इज A21. देन कम्स माय फिफ्थ एलिमेंट, मतलब एक्चुअली चौथा एलिमेंट, नंबर 5, दैट इज इन द सेकेंड रो but second column, and comes the last element of the second row, which is 6, which is represented or which is available in third column, and that is the second element of the third column. So I will write it as it is in second row and third column over here. Okay, so let me just write down these numbers. I forgot to write down 2, ये 3 हो जाएगा. A21 is my 4, A22 is my 5, A23 is my 6. Next comes is A31. Now what A31 is? A31 is nothing but over here third row का पहले कॉलम का एलिमेंट, that is 7. So let me just write down over here 7. Then next comes my 8th element, 8th number, 8वां एलिमेंट, not 8वां actually, yeah, 7वां एलिमेंट, 8वां एलिमेंट, नंबर 8, and it is in third row but second column over here. And lastly is my this element, which is in third row and third column. So let me just write down over here 8 and 9, that is. So this is the matrix representation in which A11 is 1, A12 is 2, A13 is 3, A21 is 4, A22 is 5, A23 is 6, A31 is 7, A32 is 8, and A33 is 9. So ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एंटायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है. इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट डाउन अ मैट्रिक्स सच दैट, मतलब मैं अभी तुमको एक टास्क देता हूँ तो वो टास्क कंप्लीट करना कि लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर, यू हैव टू क्रिएट अ मैट्रिसेस based on the given information,
and the information in such a way, the information is in such a way that let me just take, I cannot add the pen. Now I cannot add the pen. Okay, very good. A11 is 2, A12 is 0, A13 is 1 by 8. It doesn't matter कि कैसा है number. It's like it can be anything. A21 is 0, A22 is -9, A23 is -1 by 8. A31 is 1, A32 is 1, A33 is 1 by 8. A41 is 0, A42 is 0, A43 is -1 by 8. ये गिवन डेटा को आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, What are you going to do is just draw the square bracket over here, erase this A11, A21, A31 and so on. You will get your required answer. So that is nothing but over here, if we want to write it in the matrix form. So पहली बात तो मेरे को बताओ कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का. भाई यहाँ पे क्लियर समझ रहा है कि 4 रो और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर इज ऑफ 4/3. ओके, ऑर्डर इज ऑफ 4/3 है क्या? 1 2 3 4 5 है इसमें, तो ठीक है. तो मैं आप यहाँ पे लिखना चालू कर देता हूँ. मैं A11 is 2, 0, 1 by 8, 0, 1 by 8. Then comes my 0, -9, -1 by 8. Then comes my 1, 1, 1 by 8. कम गिर गया फिर भी. And 0, okay, let me just erase this entirely. 0, 0, -1 by 8. And so sorry for this नदिया, स्ट्रेट लाइन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है विदाउट ट्रेम्बलिंग, so it's like issue. Let me just make it straight. Okay, so the order is of 4/3, which indicates that there are 4 rows and 3 columns. Then total number of elements are 4 into 3, which is equal to 12. You can check 4 plus 4 plus 4, you will get 12 exactly. 4 कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 elements. And how did I knew? Because ये ऑर्डर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. Now whatever they write it in this way, इसको बोला जाता है बाय, और यहाँ पे नंबर आ जाता है, यहाँ पे नंबर आ जाता है. सो इसका मतलब हो गया कि देर आर अरेंजमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स. ओके, सो यस, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स. अब ये जो है आपके पास यहाँ पे, नाउ यू दिस कैन डू बाय योरसेल्फ. इधर आप आपके बुक में सेम ऐसे मैट्रिक्स ड्रॉ करिए, बॉक्सेस बनाइए, ये बॉक्सेस को फिल कीजिए यहाँ का, और ये स्पेसेस को भी फिल कीजिए आप, जैसे मैंने किया है इस एग्जाम्पल में. Do not forget to do this because this is the very basic step towards the matrix understanding. So yes, this video was specially for the representing how do you represent a matrix, and often there will be word examples also. कि let's say मैं आपको बताता हूँ कि how do you represent a matrix. Let's say मुंबई में what do we say कीबोर्ड. मुंबई में कीबोर्ड के रेट से 500 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, माउस के रेट है 200 रुपीज़, एंड व्हाट डू यू वांट ऑल्सो, मॉनिटर के रेट नहीं, मॉनिटर नहीं लेते अपन, और क्या ले, माउस, कीबोर्ड और कुछ बचा, प्रिंटर के रेट है 15,000. दिल्ली में ये क्या हो गया रे, शेप देने को बोला तो दिल्ली की जगह डायमंड दे रहा है. तो दिल्ली में कीबोर्ड इज ऑफ ₹350, माउस ₹150 एंड प्रिंटर इज ₹13,500. अच्छा, यहाँ पे ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा. एंड अब मेरे को बताना है कि आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. I want to represent this in the form of
मैट्राइसेस. ओके, टुकड़े टुकड़े में आ रहा है. कैसे था ये? Anyways, I will write it. Okay, it was 350. Okay. इसलिए मैं मैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन so now my task is I want to write it in the form of matrix. अब मैं क्या करूँगा? Look, एक तो प्लेस है मुंबई और एक प्लेस है दिल्ली, ठीक है, और बाकी ये है मेरे उनके क्वांटिटीज जिनके प्राइसिंग मेरे को लिस्ट करनी है, सो व्हाट आई डू इज, यहाँ पे मेरा आ जाएगा कीबोर्ड, यहाँ पे मेरा आ जाएगा माउस और यहाँ पे मेरा आ जाएगा प्रिंटर. सो आई विल फॉर्म अ मैट्रिक्स इन दिस वे. नाउ इट इज इजी फॉर मी. मुंबई का कीबोर्ड का प्राइस इज 500 वाइल दिल्ली का प्राइस इज 350. मुंबई में माउस इज ऑफ ₹200 while in Delhi it is only 150. Let me just write it properly. 150. But on the other hand the printer in Mumbai cost ₹15,000 whereas in Delhi थोड़ा सस्ता. हर एक चीज़ दिल्ली में सस्ता थोड़ी रहेगा बॉस. 17,000 रह सकता है, बट ठीक है, अपन 17,000 लेते हैं. सो 17,000 एंड दिस इज हाउ. एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा. एक्चुअली मैंने इसको तुमको बहुत ऐसा डेटा दे दिया है. मैं इसको दे सकता था कि देर आर 2 cities, मुंबई एंड दिल्ली, इन विच in Mumbai keyboard cost ₹500 while in Delhi it costs ₹350. The mouse in Mumbai is costing ₹200 and the printer in Mumbai is costing ₹15,000 while the mouse in Delhi, the amount of mouse or cost of the mouse and printer in Delhi is 150 and 17,000 respectively. You have to what you have to do is nothing but represent this entire data in the form of matrix. So this is how you represent it. I don't have to write this. Now these prices will tell me which is which and what it is representing. Now as you can see, यहाँ पे मुंबई का कॉलम है ये पूरा. This column entirely is of Mumbai, but okay, now ये दिख नहीं रहा है. This entire column is of Mumbai, but this entire column is of Delhi. And this is how you represent a matrix जिसमें order is 3 rows but 2 columns. अब यहाँ पे अगर एक और कोई सिटी ले लो, समझो न्यूयॉर्क सिटी ले लिया तुमने यहाँ पे एनवाईसी, और यहाँ पे तुमने ले लिया लेट्स से टेक्सास. यहाँ पे अब ये इंडिया और ये हो गया यूएसए इसका. सो लाइक ऐसा नहीं करना है, देखो बस इंडिया और यूएसए से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, बस मैं तुमको दे रहा हूं 4 अलग अलग सिटीज. तो अब यहाँ पे और 2 सिटीज आ जाएंगे, तो मतलब वो मैट्रिक्स इतना हो जाएगा 3/4 का हो जाएगा. अगर मैं ये 2 सिटीज को भी इन्वॉल्व करता हूं, तो नहीं इन्वॉल्व करता हूं तो देयर इट इज, देयर यू हैव. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स इवन दो इफ इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम और डायरेक्टली इन सम ऑफ अ नंबर फॉर्म. यहाँ पे मैंने नंबर फॉर्म में दे दिया था, यहाँ पे मैंने वर्ड फॉर्म में दे दिया, यहाँ पे मैंने नंबर फॉर्म में दिया, यहाँ पे मैंने वर्ड फॉर्म में दे दिया. इफ यू वांट यू कैन डिवाइड द एंटायर विथ 100, सो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म 1/100. तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 2. मीन्स वॉट, यू आर टेकिंग द 100 कॉमन. ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 170. 1/100 नहीं, सॉरी, 100 कॉमन निकाला. 100 कॉमन निकाला. इसका मतलब क्या हो गया कि 100 कैन बी मल्टीप्लाइड थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट. और वो कॉमन भी निकाल सकता हूं मैं. सो इट इज पॉसिबल फॉर मी टू राइट इट इन दिस वे ऑल्सो. मतलब 100 इंटू दिस मैट्रिक्स. दिस 100 इज वॉट, अ कांस्टेंट क्वांटिटी जो हर एक के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. भी आगे आएगा वो समझ में. बट खैर, सो दिस इज वन ऑफ द वे टू द वे दैट यू कैन रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी. थैंक यू.